माझ्या जीवाची होती या कायली, माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची होती या कायली, माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची होती या कायली, माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची होती या कायली. हे ओती बांधा रंग गव्हाळा कोर चंद्राची, उदात्त गुणाची मोठ्या मनाची, सीता ती माझी रामाची, हसून बोलायची मंद चालायची सुगंध केतकी, सतेज कांती घडी व पुतळी सोन्याची, नव्या नवतीची काडी दवण्याची, रेखीव भुवया कमान जणू इंद्रधनुची, हिरकणी हिऱ्याची काठी आंधळ्याची, तशी ती माझी गरीबाची मैना रत्नाची खाण, मैना रत्नाची खाण, माझा जीव की प्राण नसे सुखाला वाण, तिच्या गुणाची चकड मी गायली, माझ्या जीवाची होती या कायली, हे माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची होती या कायली, माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची होती या कायली, माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची होती या कायली. Again, I didn't come to the city. I was born and brought up in Mumbai. My parents belong to Mumbai. So I was born in Thane and then I continued to stay in Mumbai. My education, my job, everything has been here. So I never left the city. So it's like I've been belonging to the city since my birth. So according to you, what is the benefit of living in a city? The one biggest advantage of being in a city is you have good airport connections, you have good bus connections. So that's one. Second thing is, I still feel the medical benefits or the medical amenities that you get in a city are better than what you get in rural areas. Though we have developed a lot in the country, however, there are still certain things which you get only in bigger cities of the country. So that's the second advantage. I think connect with people while you are working with different cultures also gives an advantage, because multicultural people come and settle in a city rather than a rural area. So the next question is what are the major health issues that you people face by living in this area, and what is your preferred first line of treatment to deal with? So the health challenges, again, if I speak very personally about me, I've been fortunately keeping good health until COVID, probably because I was also impacted by COVID. I was in the hospital for 10 days, not in a very good condition. So I think post-COVID things have been a bit difficult for me. The last probably 21 and 22 after COVID, I went through multiple post-COVID challenges, but I think now I have settled down. And if you ask me the first line of treatment, again, me or my family would try some home remedies to begin with, but then we would go to our family physician. Like the older times, we have our own family doctor, whom we have been going to for the past 25 years plus. So we go and visit him for any immediate medical advice. In case required, he may advise to go to a specialist, but that would be much later. First would be our family physician. Okay. So is there any reason for not selecting the public government hospital for your... The time you need to spend when you go there, I think that keeps us away from going to public hospitals or doctors. Okay. So despite from seeing the advantages, are there any stresses or negative effects which you find living in the city? Obviously, yes. Again, pollution getting a bigger problem day by day because of the number of people increasing. The time you spend to travel to your workplace has increased tremendously over the years, again because of traffic. Your life is very mechanized. You're tied to your watch because you need to leave home early. You come back late from office, spend time in traveling. So these are major negativities. And again, pollution, as I said, getting bad day by day, mainly of the city that you can talk of. And if we talk about the education of your children, or we talk about that how they spend their time, because there are no playgrounds available in the city. The education is very fine, so there is no challenge on education. There are multiple schools available. The only thing is they are expensive. I think they are getting expensive day by day. So if you want to send your kid to a good school, you need to spend good amount of money. But the level of education is very good, no challenge on that. And as you rightly said, the kids spend more time on laptops and mobiles when you are in the city because they get hardly any time to go down. There's no space even if they want to. And even if they go down, the kids around them are also all hooked up to their mobiles and iPads and other things. So I would say the physical nature of playing is reduced over a period more significantly in cities.
आहो या गरिबीनं ताटातूट केली आम्हा दोघांची, आहो या गरिबीनं ताटातूट केली आम्हा दोघांची. झाली तयारी माझी मुंबईला जाण्याची, वेळ होती त्या भल्या पहाटेची, बांधाबांध झाली त्याची. घालवीत निघाली माझी मैना चांदणी शुक्राची, गाऊंद्रीला येताच कळी कोमेजली तिच्या मनाची. शिकस्त केली मी तिला हसवण्याची, खैरात केली पत्रांची वचनांची, दागिन्यांनी मडवून काढायची. आप अपना गांव छोड़ के इस शहर में क्यों आए? कमाने के लिए आए, अपना फैमिली ये करने के लिए. तो इस शहर में रहने का क्या फायदा आपको लगा? गांव छोड़ के यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? इधर पेमेंट ज़्यादा है और गुजारा होता है, गांव में नहीं होता है. अच्छा, और स्वास्थ्य को लेके यहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं आपको सारी? कुछ भी नहीं मिलती है इधर. तो यहाँ लोग कितना जल्दी जल्दी बीमार होते हैं और किस तरह से आप लोग उस चीज़ को देखते हैं? गवर्नमेंट का दवाखाना तो लंबा है इधर से, इधर प्राइवेट में जाते हैं हम. तो सबसे पहले आप कोई भी घर में बीमार होता है प्राइवेट में तो आप मतलब कुछ घर का नुस्खा लगाते हैं, सीधे प्राइवेट पे जाते हैं? प्राइवेट में जाते हैं. तो जो भी खर्चा होता है फिर आप लोग को उठाना पड़ता है वो. अच्छा, और यहाँ रहने की वजह से आपको लगता है कुछ आप लोग को मानसिक तनाव रहता है कि शहर में रहते हुए किसी भी तरह की दिक्कत की वजह से? वही अभी घर टूटे है तो उससे दिक्कत ज़्यादा हो गई. बाथरूम गंदा रहता है, उसलिए पैसे के बाथरूम में जाना पड़ता है. उसका भी पैसा अलग से देना पड़ता है? हाँ, अलग से पैसा देना पड़ता है उसको भी. अच्छा, और जैसे आपके बच्चे हैं हाँ. उनकी पढ़ाई को लेके क्या सुविधाएं हैं शहर में, इस शहर में रहते हुए? कुछ भी नहीं सर, उसको भी पैसा पे भरना पड़ता तो है. वो भी आप सब प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं? प्राइवेट में. अच्छा, और जो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं तो उन बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य को लेके यहाँ पे कुछ सुविधाएं हैं या फिर उनका ध्यान रखने के कुछ है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है. उनका भी कुछ भी नहीं है. पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है. पर जैसे इतनी दिक्कतें हैं तो मेरे को लगता नहीं गांव में इतनी दिक्कतें रही होंगी. नहीं. तो आप लोग को ऐसा लगता है कभी आपको वापस गांव की तरफ चल जाना चाहिए? गांव में कुछ है ही नहीं ना अपना, तो सब इधर ही है. कमाते हैं, स्कूल है बच्चे लोग का, तो गाँव में नहीं जा सकते ना, उधर से अलग पैसा भरना पड़ेगा हम लोग को. इसी कारण की वजह से भले ही कितनी भी दिक्कतें हैं पर आप शहर में रुके हुए हैं. ठीक, थैंक यू. ये साल भर से यहाँ पे झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पे इसमें झोपड़ी तोड़ा गया है. और ये जो टॉयलेट है ये सार्वजनिक टॉयलेट है और ये यहाँ पे बहुत गंदगी है. बीएमसी में मैंने 4 महीने पहले लेटर दिया था तो वहाँ पे बोल रहे कि ये झोपड़पट्टी जो है अभी पुनर्वसन में जा रहा है तो हम लोग वो मेंटेन नहीं कर सकते और ये सी कैटेगरी अंतर्गत ये धोखाधड़ी ऐसा वो बोल रहे थे. और फिर बाद में ये बोर्ड लगा दिया है कि बोलते हैं कि मेंटेन बाय SR करेंगे बोलते हैं. अभी तक कुछ वहाँ पे किया नहीं है और इतनी गंदगी फैली हुई है. झोपड़ी तोड़े गए हैं तो झोपड़ी तोड़ने की वजह से बस्ती में बहुत सारा मच्छर गंदगी फैल रहा है. और बहुत बार हम लोग कंप्लेंट किया है तो वो जो यहाँ का BMC है कुछ कार्रवाई नहीं कर रही यहाँ पे. ये जो टॉयलेट है ये 2014 में बांधा गया है. तो ये 2 साल के 16 में ये टॉयलेट जो है धोखादायक ऐसा बोल के BMC ने मतलब तोड़ने की इनको ये दी थी. और ये जो मसला है ये हाई कोर्ट में गया था. यहाँ पे 60 सीटर यानी 60 सीट का जो टॉयलेट है 60 सीट के बदले ओनली यहाँ पे 17 सीट बांधे गए हैं. पर हाई कोर्ट ने जो बताया कि यहाँ पे जब तक 60 सीट नहीं बांधते तब तक ये टॉयलेट तोड़ा नहीं जाएगा और इसका केस जो है हाई कोर्ट में चालू है. मिनीबाग, मोनियाबाग.